مائی سٹی نیوز کے لیے میرے شہر کے مسائل کے اوپر ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس کے لیے ہم یہاں کے شہریوں سے اپنے شہر کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا مسائل ہیں، اور ان کے حل کی کچھ تلاش کریں گے کہ کیا حل نکالا جا سکتا ہے۔ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق صدر پریس کلب سردار ریاض شاہد صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے شہر کے مسائل کیا ہیں، اور ان کا کیا حل ان کے نزدیک ہے۔ جی ریاض صاحب۔ جی، اگر میں اس وقت دیکھوں کہ ہمارے شہر راولہ کوٹ کے اندر بڑے مسائل کیا ہیں، تو ان میں سمجھتا ہوں کہ سیوریج، پانی اور پارکنگ کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑے ایشو ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ زلزلے کے بعد ایرا نے یہاں اس کے سیوریج اور پانی کے حوالے سے کام کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ ہم 3 ارب سے زیادہ پیسے جو ہے نا ہم نے زمین میں ڈبو دیے، لیکن نہ تو ہمیں پانی مل سکا، نہ سیوریج کا انتظام ہو سکا، اور پھر سرکاری طور پر یہاں کوئی پارکنگ کا انتظام بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے شہر کے، چونکہ شہر ہمارا دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کے مسائل آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس کے مطابق ہمارے سیوریج، پانی اور ٹریفک کے مسائل کو حل کر سکے، پارکنگ کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ یہ بڑے 3 مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کو پلان بنائیں، تاکہ ان بڑھتے ہوئے شہروں میں جو ہے نا ان مسائل کو حل جب تک آپ نہیں کریں گے، چونکہ یہ ٹورزم ہب بھی ہے، راولہ کوٹ کو کہا جاتا ہے، جب تک ٹورزم کے لیے آپ پلان بنائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پانی، سیوریج کا سسٹم اور پارکنگ کا سسٹم جو وہ بہتر ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے یہاں ٹورسٹ آ کے وہ یہاں آپ کی ترقی کے لیے ایک بہتر کردار ادا کر سکیں۔ آپ کے نزدیک ان مسائل کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ چونکہ یہ ٹورسٹ کے حوالے سے ایک بڑا شہر موجود ہے، یہاں جو ہے نا ٹورسٹ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا پارکنگ کا سسٹم، ہمارے پانی کا مسائل اور سیوریج کا سسٹم جب تک نہیں حل ہوگا، ہماری ٹورزم کی انڈسٹری ترقی نہیں کر سکے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ مقامی خواتین جو جرنلسٹ بھی ہیں موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی میڈم بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو مسائل ہیں وہ کون سے سخت ترین مسائل ہیں، اور ان کا کیا حل ہے؟ جی، موجودہ مسائل اگر اس کے اوپر میں بات کروں تو ابھی بے شمار اس طرح سے مسائل ہیں لیکن جو ایک مین ایشو بنا ہوا ہے وہ بجلی کے بلات کے اوپر ناجائز ٹیکسز اور فیول ایڈجسٹمنٹ، ان چیزوں کے اوپر لوگ بہت اشتعال ہوئے ہوئے ہیں، اور ان میں بہت غم و غصہ ہے۔ احتجاج کے لیے جب وہ روڈز پہ نکلتے ہیں تو ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمارا ایک تو ٹورسٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، چونکہ روڈ جب بلاک ہوتی ہیں تو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حکومت وقت کو اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، اور ٹیبل ٹاک کے اوپر یہ مسائل ہمارے حل کرنے چاہیے۔ سر جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا خان، یہ بھی جرنلسٹ ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بشرا، بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک ان مسائل کا کیا حل ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہاں پہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جن پہ حل ضروری ہے، اور بجلی کا ایشو زیادہ اہم ہے، جو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ایک کریٹیکل سچویشن پہ ہے، جس پہ لوگ زیادہ اس وقت اشتعال ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، ٹیبل ٹاک کریں، تو اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ پارکنگ کا جہاں تک دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس شہر میں مسئلے آ رہے ہیں، ان سب مسائل سے نکلنے کے لیے اگر ہماری لوکل انتظامیہ اس مسئلے پہ غور کرے اور اس کا کوئی حل نکال دے تو یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہوگی میرے خیال سے لوگوں کے لیے۔ جی، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ ایشو ہے ہمارا اس وقت، جو برننگ ایشو ہے وہ بجلی کے اوپر ہے۔ تو ریاض شاہد صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا حل ہونا چاہیے؟
आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस वक्त 5 अरब रुपये सालाना की बिजली खरीद रही है और 25 अरब रुपये इस पे जो है ना वसूल कर रही है अवाम से। यानी ये ऐसा आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कमाऊ पूत है जो 20 अरब रुपये जो है ना वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को दे रहा है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों की अपनी अय्याशियाँ तो हो रही हैं, लेकिन वो इसमें से अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। जो इस शहर का इस वक्त या पूरे आज़ाद कश्मीर का ये बर्निंग इशू बना हुआ है और इस पे लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज पे हैं, तशद्दुद हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और FIRs हो रही हैं और इस वक्त भी तकरीबन 30 लोग गिरफ्तार होकर थाने में बंद हैं। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की FIRs दर्ज की गई हैं और हालात इंतहाई कशीदा हैं शहर के। इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को रिलीफ दें। ₹2 की चीज़ खरीद पे कि आप 6-7 रुपए में दे सकते हैं, लेकिन 20 से 23 रुपए या 40 से 44 रुपए देना ये अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, मैं समझता हूँ। जी, ये तो यहाँ के मुकामी जर्नलिस्ट का मौक़िफ़ था। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ की जो अवाम है, जो शहरी हैं, उनसे जानते हैं। जी, तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो ज़िम्मेदार शहरी हैं यहाँ के, सरदार एजाज़ साहब हैं। इनसे जानते हैं कि इनके नज़दीक जो हमारे मसाइल हैं, इनके क्या मसाइल हैं और क्या हाल हैं? जी, क्या फरमाते हैं? देखें जी, हमारा छोटा सा शहर है ये रावलाकोट है। तो ये डिवीजनल हेडक्वार्टर, लेकिन ये ना तो ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, ना ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। छोटा सा सिटी है। इसमें आप ये देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन में आया है कि बेहंगम ट्रैफिक के मसाइल हैं। यहाँ पे घंटों यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मरीज़ फंसे रहते हैं, शहरी अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाते हैं। ये एक ट्रैफिक का इशू है और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो इंतज़ामिया है, लोकल ट्रैफिक पुलिस है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है या दीगर जो कंसर्न इदारे हैं, ये उनकी मिस मैनेजमेंट और जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर नहीं है, और ना ही यहाँ पे उनको इस तरह की कोई तरबियत दी गई है। हालांकि अगर आप ये देखें कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पे ना गाड़ियाँ हैं, ना कोई इतना बहुत बड़ा कोई मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह ट्रैफिक है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि यहाँ पे घंटों घंटों हमारी ये रोड्स ब्लॉक रहती हैं, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये अगर इसको एक तरीक़ेकार के तहत अगर हमारी जितनी बड़ी मार्केट्स इस शहर के अंदर हैं, उनके नज़दीक अगर एक पार्किंग एरिया यहाँ पे अगर वो डिक्लेयर कर लें और सिर्फ रोड के ऊपर गाड़ी ना खड़े करें, तो हम ये समझते हैं कि ये इशू हल हो सकता है। दूसरा ये कि आप ख़ुद देखते हैं कि यहाँ पे 2-3-4 दफ़ा, क्योंकि आप इसी शहर से आपका तल्लुक़ है, आप देखते हैं कि 2-3-4 दफ़ा यहाँ पे एक वन वे मुतारफ़ करवाई गई, ट्रैफिक के जो रूट थे वो मुतारफ़ करवाए गए, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आए रोज़ ना सिर्फ उन जो ट्रैफिक के रूट्स मुतारफ़ करवाए जाते हैं, उनमें रद्द-बदल कर दिया जाता है और हर नए दिन एक नया रूट आता है और एक नई वन वे के तौर पर मुतारफ़ करवाई जाती है। इंतज़ामिया की जो गठजोड़ है वो ये है कि कहीं पे इस तरह की देखभाल नहीं की जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बाज़ार में काम होते हैं, वो यहाँ आके अदालतों के बाहर या किसी जगह गाड़ियाँ खड़ी करके वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और परेशान जो है वो बेचारी आवाम हो रही है। और इसी तरह जो है मरीज़ों को ले जाने में आए रोज़ परेशानी होती है। अड्डों की जो सूरत हाल है वो भी यही है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया नाम की जो बैठी हुई है, वो उसकी मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी वो अपनी पूरे तरीके से फुलफ़िल नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे एक माफिया है जो इंतज़ामिया का रोल भी अदा कर रही है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो सूरत हाल है, ट्रैफिक का बेहंगम जो रश है और उसके बाद लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लूटा जा रहा है। आए रोड ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है कि अगर 10 रुपये फ्यूल जो है वो बढ़ता है तो 15 रुपये वो किराया जो है वो उस पे बढ़ा लेते हैं, और हमारे यहाँ पे किसी गाड़ी में किसी में कोई आज तक जो है वो किराया लिस्ट तक या वज़ा नहीं करवा सके हैं। तो ये पूरे तौर पे इस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। थैंक यू सर। जी सर, बहुत मुश्किलात होती हैं, ज़ाहिर है ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। बाज़ टाइम ऐसी सवारियाँ होती है जो मरीज़ होते हैं जिनको अस्पताल में पहुंचाना होता है या कोई मसला होता है, उस टाइम फिर मुश्किल हो जाती है। उस टाइम ज़ाहिर है किस तरह बंदा, जब रोड बंद होगी तो बंदा आगे उनको किस तरह पहुंचाएगा, मुश्किल तो होती है सर। जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि ट्रैफिक के मसाइल हैं हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि आप क्या कहते हैं कि यहाँ के क्या मसाइल हैं और इनके मसाइल का कोई हल है आपके पास? ये क्या-क्या मसाइल हैं, कुछ कह सकेंगे? सर, ये ट्रैफिक के हवाले से ये मसाइल है कि यहाँ जहाँ भी किसी को मतलब या पार्किंग चेक कर लें, जहाँ जिसको दिल आता है वहाँ पर गाड़ी, कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। ये बैंक के आगे आप देखें तो कोई भी बड़ी गाड़ी आती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया जो है एक्शन ले, वो
लिफ्टर वगैरह यहाँ आए हुए हैं, वहाँ एक दो गाड़ियाँ अगर उठ जाएं तो फिर कोई इस तरह गाड़ी पार्क नहीं करेगा। लेकिन इंतज़ामिया का दायरा है, तो लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि यहाँ पर लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, तो गाड़ी इस तरह रोड पर पार्क नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। इनका कहना है कि इंतज़ामिया के पास लिफ्टर मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया भरपूर अपना काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मसाइल ट्रैफिक के जूं के तू हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। ओवरऑल जो शहर के मसाइल हैं इसमें ट्रैफिक का है। मैं तो एज ए चेयरमैन ये कह चुका हूँ कि ये शहर जो है ये इस आबादी के लिए नाकाफ़ी है और एक नए शहर की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने बतौर चेयरमैन या डेवलपमेंट अथॉरिटी रावला कोर्ट ने इकदाम उठाए थे कि यहाँ कम अज़ कम एक नई हाउसिंग स्कीम जो थी वो मेरे दौर में उस पर काम हो चुका था। अब मैं नहीं कह सकता कि वो किस वजह से वो ताख़ीर का शिकार है। तो एक तो ये है। जहाँ तक बिजली के मसाइल का ताल्लुक़ है तो मैं कहता आया हूँ, एक तो बिजली का आना जाना है, वोल्टेज के प्रॉब्लम हैं, ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह डेफिनेटली इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिनको एड्रेस किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावला कोट, सरदार जावेद शरीफ साहब। ये बताइएगा कि जो लोग गिरफ्तार शुदगान हैं, हमने सुना कि उनके ऊपर दहशत गर्दी का एक्ट लगाया गया, तो उसकी क्या तफसीलात हैं? क्या गिरफ्तार शुदगान पे जिन्होंने रोड पे आके अपना एहतजाज पूरा मन रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा ये जो गिरफ्तार अपना दहशत गर्दी का एक्ट है, ये एक्ट लगाया जा सकता है या कैसे देखते हैं आप बहैसियत दुनिया वकील? के अंदर जो सियासत के मारूज हैं कि अगर लोग अपने राइट्स के लिए बाहर निकलेंगे तो उन्हें 680 ये लगा के दहशतगर्दी का मुकदमा अगर उन पे कायम होगा तो फिर हम ये समझेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं रहा। अगर उस पार जो है ना हमारे लोगों के ऊपर जो है ना एहतजाज पे अगर दहशतगर्दी के एक्ट लगते हैं तो फिर यहाँ भी अगर वही सूरत हाल है तो फिर आप देख लें कि ये दुनिया के अंदर आप कहीं भी देखें कि जो लोग एहतजाज पे निकलते हैं तो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे कायम करना कहाँ का इंसाफ है। तो हम इसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं कि आज लोगों के इनको ड्राइव कोई और कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंटें ड्राइव करती हैं और वो जो है ना इनको अपने ज़ोर जबर के ज़रिए जो है ना अब लोगों के आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो 680 ये किसी सूरत में भी जो है ना कानूनी तौर पे एहतजाज पे नहीं लगता जो है ना। आप हमारे साथ थे, मेरे शहर के मसाइल और इसके हल के ऊपर हम बात की, हम सब ने मिल के। आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहे। इजाज़त दीजिए। इमरान अयूब को रावला कोट से इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। देखते रहिए माई सिटी न्यूज़।